प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। एसीएल केंदा क्षेत्र के अंतर्गत न्यू केंदा कोलेरी के न्यू केंदा ओसीपी से भारी मात्रा में धुआं निकलना शुरू हुआ। कुछ ही क्षणों में खदान से निकलने वाला ये धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया। इससे आसपास के निवासियों में दहशत फैल गई। सूत्रों के अनुसार ओसीपी से निकलने वाले धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा ओसीपी के आसपास रहने वाले लोग भूस्खलन की आशंका से भी डरे हुए हैं। न्यू केंदा ओसीपी के पास मंडलपाड़ा के निवासी अमर बर्नवाल ने बताया कि हालांकि ओसीपी से हमेशा हल्का धुआं निकलता रहता है, लेकिन सोमवार दोपहर को बारिश के समय भारी मात्रा में धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसके कारण पूरा मंडलपाड़ा धुएं से ढक गया। उन्होंने बताया कि ओसीपी से निकलने वाले धुएं में जहरीली मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि एसीएल प्रबंधन को तत्काल न्यू केंदा ओसीपी के आसपास रहने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जिसके लिए एसीएल प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। এটা এখানে মাইন্স চলছে, সিএমওটির কাজ চলে, এসিআর মাইন্স আছে এখানে। যখনই জল পড়ে না তখন এটা আগুন ফেস গোটাটাই আগুন জ্বলে আছে এখানে। আগুনটা জ্বলে এত গ্যাস বেরোয়, মিথেন গ্যাস বলো, কার্বন মনোঅক্সাইড, এটা আমাদের জন্য খুব খারাপ বলা যায়। আজকে হঠাৎ কি হয়েছিল? আজকে হঠাৎ সবসময় তো হতো, আজকে কত বছর থেকে এরকম চলে আসছে, কিন্তু আজকে এত জল দিচ্ছে, এত জল, তারপরে জল দেওয়ার ফলে তোমার এত গ্যাস বেরোচ্ছে, ওখানে একটা ফাটল মতন হয়ে গেছে, ল্যান্ডস্লাইড মতন হয়ে গেছে, ভূস্খলন যেটা বলে। আশেপাশে কি কি পাড়া আছে? আশেপাশে অনেকগুলো পাড়া আছে, বাউরি পাড়া আছে, মন্ডল পাড়া আছে, মাঝি পাড়া আছে, গোটাটাই আছে এখানে। ওদের ওদের কত সংখ্যা হবে এখানে? মোটামুটি লোকজন সংখ্যা এখানে মোটামুটি সংখ্যা 1200 থেকে 1300। ধসের কোনো আশঙ্কা আছে এরকম ঘটনা ঘটে? একদম সংখ্যা আছে, মানে এই যে আগুন লেগে আছে গোটাটা সারলাঙ্গা, আমরা যত সারলাঙ্গা বাসি আছি সব মানে ভয়ে আছি, কখনো এখানে ধসান হতে পারে। ইসিএল ম্যানেজমেন্টকে আপনারা কি বলতে চাইবেন? ইসিএল ম্যানেজমেন্টকে আমরা এটাই বলতে চাই, তাড়াতাড়ি রিহ্যাবটা করুন, ওইটাই ওনার কাছে অনুরোধ বলো, আমাদের দাবি বলো, একটাই আছে, रिहैबिलिटेशन। আপনার নাম? আমার নাম अमर बर्नवाल। 13 अगस्त को लौदोहा के श्री कृष्णपुर में एक परित्यक्त कुएं से आलिया बीबी वर्ष 35 का शव बरामद हुआ, जिस पर कई चोटों के निशान थे। इस रहस्यमय मौत की गुत्थी को दुर्गापुर फरीदपुर पुलिस ने सुलझा लिया। हत्या के आरोप में मृतका के प्रेमी शेख सलाउद्दीन को रविवार को गिरफ्तार किया गया। उसने कबूल किया कि उसने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर हत्या की। आलिया 16 अगस्त से लापता थी। उनके पति गयासुद्दीन ने बताया कि वो अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने के बाद घर लौटे तो आलिया नहीं थी। खोजबीन के बाद थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई। पुलिस जांच में पता चला कि आलिया के कई पुरुषों के साथ अवैध संबंध थे। तदंत के बाद सलाउद्दीन, जो रांगामाटी गांव का ही निवासी है, को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को डीसीपी पूर्व अभिषेक गुप्ता ने बताया कि सलाउद्दीन ने कटारी से हत्या कर शव को ईंट से बांधकर कुएं में फेंक दिया था। वो आलिया के साथ अवैध संबंध में था और हाल ही में ब्लैकमेलिंग से परेशान था। वो 6 दिन की पुलिस हिरासत में है। तो मास একটা মিসিং কমপ্লেন্ট ফাইল হয়েছিল ফরিদপুর লৌদোহা থানার রাঙ্গামাটি গ্রামের একজন মহিলা আলিয়া বিবি, ওর বয়স 36 বছর। ওর মিসিং কমপ্লেন্ট ফাইল করে ওর হাজব্যান্ড শেখ গিয়াসুদ্দিন। তো 16 তারিখ থেকে এটা চলছিল। তারপরে আমরা ওর বাড়ির কাছেই রাঙ্গামাটি গ্রামেই আমরা ওর মহিলার বডিটা রিকভার করি 31 আগস্টে একটা কুয়ো থেকে। এই বডি রিকভারি করতে গেলেও খুব আমাদেরকে এক্সটার্নাল ডিএমজি টিমের সাপোর্ট নিতে হচ্ছিল এবং লোকাল গ্রামেরও অনেকজনের সাপোর্ট নিতে হয়েছে। তো এটা তখনও একটু হাইলাইট হয়েছিল।
তারপরে যেভাবে বডি রিকভার হয় এটা জানা যায় যে ওটা কোনো হোমিসাইডাল আছে। তো সেটার জন্য পরে পোস্টমর্টমের পরেও একটা কমপ্লেন্ট হয়, শেখ ঘিয়াসুদ্দিন ওর হাজব্যান্ড, মহিলার হাজব্যান্ড একটা কমপ্লেন্ট করেন আর একটা মার্ডার কেস স্টার্ট হয় ফরিদপুর থানাতে মার্ডার কেস স্টার্ট হয় 31 অগস্টে। তারপরে সব লিগাল প্রসিজার ফলো করা হয়। আর মার্ডার কেসটা ওনারা একজন লোকাল গ্রামেরই শেখ লালন বলে তার এগেনস্টে করেছিলেন কমপ্লেন্ট বাই নেম করে। আমরা ফরিদপুর থানা ওকেও অ্যারেস্ট করে, কিন্তু ওর কাছ থেকে সেরকম কিছু আমরা পাই না, কিন্তু আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে থাকি। ইনভেস্টিগেশনে খুব অনেক তথ্য বেরোলো। ফার্দার আমরা জানতে পারি যে ওই মহিলার একটা সম্পর্ক ছিল, ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল একজনের সঙ্গে, ওই গ্রামেরই এক লোক যার নাম আছে শেখ সালাউদ্দিন, जो জাকির হুসেনের ছেলে, রাঙ্গামাটি গ্রামের ফরিদপুর থানার। ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গত 1 বছর ধরে। আর এই নিয়ে ওই মহিলাটা ওকে অনেকবার রিসেন্ট টাইমে ব্ল্যাকমেল করছিল যে যদি ওর সঙ্গে সম্পর্ক কন্টিনিউ না করে তাহলে ওকে ও মহিলা সুসাইড করে নেবে বা এরকম, এটা কনফেশন করেছে শেখ সালাউদ্দিন। আমরা ইনভেস্টিগেশন করার পর টেকনিক্যাল এভিডেন্স গ্যাদার করে শেখ सालाउद्दीन আমরা अरेस्ट करी। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल के 5 गछिया इलाके में आनंदम रेजिडेंसी में जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने प्रेस मीट को संबोधित किया। उन्होंने धर्म, राजनीति और विदेश नीति पर बेबाक राय रखी। शंकराचार्य जी की राय ने कई विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा छेड़ दी। नेपाल संकट पर स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, शांतिपूर्ण बातचीत से समाधान निकले, विद्रोह कोई हल नहीं, भारत में ऐसी पुनर्वृत्ति नहीं होनी चाहिए, बंगाल में बाहरी लोगों पर अत्याचार ना हो तो बाहर भी सम्मान मिलेगा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 500 प्रसन्नता का विषय, लेकिन पीएम द्वारा अनधिकृत तरीके से किया गया, मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। भाजपा चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे। गुजरात सीएम रहते मोदी ने गौ हत्या रोक की मांग की, लेकिन 11 वर्षों से पीएम पर अमल क्यों नहीं? धर्म राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, राजनीति राजधर्म है। को राजधर्म कहते हैं या नहीं, छात्र धर्म कहते हैं या नहीं? धर्म पर हावी होने से राजनीति रहेगी क्या? राजनीति का अर्थ है छात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म। अगर धर्म पर राजनीति धर्म के बाहर है क्या? क्षत्रियों का जो धर्म है उसी को राजनीति कहते हैं। अगर राजनीति पे राजनेता हावी हो जाएंगे राजधर्म पर तो राजनेता कहाँ से रहेंगे? आप सनातनी हैं या नहीं? आप सुरक्षित हैं? तो भाजपा को उत्तर दीजिए, आप हमसे क्यों दिलवाना चाहते भाई मैं भी पत्रकार रहा हूँ, अवैतनिक बचपन में दिल्ली में विद्यार्थी था। हिंदू राष्ट्र होता धर्मच्युत, धर्म से च्युत कराना, धर्म परिवर्तन क्या होगा? धर्माभास को अपनाना क्यों होता है?
भोलेपन के कारण या गरीबी के कारण। अगर भोलेपन के कारण होता, सेवा के नाम पर व्यक्ति दिशाहीन कर दिए जाते हैं। हिंदुओं का कर्तव्य हर क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वाह करें। 10 पीढ़ी के लिए घर अर्थ जोड़ने का प्रयास न करें, 10 व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करें। वामपंथी संगठनों ने आज सालानपुर पंचायत समिति के बीडीओ कार्यालय में 13 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। मीनाक्षी मुखर्जी सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को उठाया। मुखर्जी ने कहा कि गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, जिसके खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं। बीडीओ ने बताया कि ज्ञापन में उठाई गई मांगों जैसे जर्जर सड़कों की मरम्मत और राशन की गुणवत्ता पर काम शुरू हो चुका है। बारिश के कारण रुके सड़क मरम्मत कार्य को दुर्गा पूजा के बाद पूरा करने का आश्वासन दिया गया। राशन संबंधी समस्याओं को भी सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन गरीबों के हितों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। গোটা রাজ্য জুড়ে কৃষক সভা, ক্ষেত মজুর, শ্রমিক, বস্তি সমস্ত বামপন্থী গণসংগঠনগুলোর উদ্যোগেই মানুষের প্রত্যেক দিনের জীবন যন্ত্রণা দাবিগুলোকে নিয়েই বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে ডেপুটেশন হচ্ছে। সরকার আমার পাড়া আমার সমাধানে পার বুথে 10 লক্ষ টাকা খরচা করেছে। এর আগে দুয়ারে সরকার ছিল, এক ডাকে অভিষেক আছে, দিদিকে বলো আছে। তবুও প্রত্যেক দিন মানুষের সরকারি জিনিসপত্র পাওয়ার এবং সরকারি প্রকল্পের যা সুবিধা আছে সেই সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু মানুষের ব্যাপক দুর্ভোগ যন্ত্রণা আছে এবং সেই কিছু মানুষটা হচ্ছে বড় সংখ্যায় গরিব মানুষ। ফলত গোটা জেলা জুড়ে এবং গোটা রাজ্য জুড়ে আমাদের এই আন্দোলন চলছে। दुर्गापुर सिटी सेंटर के चतुरंग मैदान में सोमवार शाम को फिल्म रघु डाकात के प्रचार ने उत्सव का रूप ले लिया। अभिनेता देव और अभिनेत्री इधिका पाल सहित अनिर्बान भट्टाचार्य, सोहिनी सरकार, रूपा गांगुली, ओम सहानी और एलेक्स सोनील जैसे कलाकारों ने इस आयोजन में शिरकत की। देव ने दर्शकों को धन्यवाद देते हुए कहा, रघु डाकात सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बंगाल की गौरव गाथा है। निर्देशक ध्रुव बंदोपाध्याय ने फिल्म की कहानी और निर्माण के अनुभव साझा किए। मैदान में प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी, जो अपने पसंदीदा सितारों को देखने के लिए दूर दूर से आए। ट्रेलर और गानों के प्रदर्शन पर दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया। इस शानदार प्रचार ने फिल्म की रिलीज से पहले उत्साह को और बढ़ा दिया। খাদানে যখন আমরা বেঙ্গল ট্যুরটা শুরু করেছিলাম, খাদানে যখন আমরা বেঙ্গল ট্যুরটা শুরু করেছিলাম, আমরা দুর্গাপুর থেকেই শুরু করেছিলাম এবং আমি কথা দিয়েছিলাম যে যতবারই আসবো, যতবারই এই বেঙ্গল ট্যুর করবো যে কোনো ছবির জন্য, আমি দুর্গাপুর আবার আসবো এবং সেই কথা রাখার জন্য আবার এসেছি। নতুন টিম, নতুন অনেকজনই নতুন আছে, ধ্রুবদা নতুন, তার মধ্যে সোহিনী, অনির্বাণ, অনেকজনই নতুন। তো ভীষণ ভালো লাগছে দুর্গাপুরে এসে। খাদান দুর্গাপুরে দুর্দান্ত চলেছে, তারপরে আমার ধূমকেতু রিলিজ হচ্ছে, ধূমকেতু খুব ভালো চলেছে এবং আজকে আমরা রঘু ডাকাতের জন্য এলাম। একটা কথা অনির্বাণ খুব ভালো বললো, যেটা আমার সত্যি ভীষণ ভালো লেগেছে, যে সিনেমা শুধু বানালে হয় না, সিনেমাকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হয়। এই খাদান দিয়ে যে উৎসবটা শুরু হয়েছে, যারা দেখবে, যারা বানাবে, দুজনের মধ্যে যে একটা শুভ সম্পর্ক, একটা ভালো সম্পর্ক যে তৈরি হয়েছে বেঙ্গল ট্যুরের মাধ্যমে, সেটা আমার কোথাও যেন মনে হচ্ছে আজকে একটা আইকনিক জায়গায় চলে গেছে। আমি রঘু ডাকাতকে কেন বেছে নিলাম, কেন আমি ধূমকেতুতে ডিস্ট্রিক্ট গেলাম না,
একটাই কারণ কি, রঘু ডাকাত এমন একটা চরিত্র যেখানে আমরা সবাই ছোট বড় সবাই আমরা জানি, পড়েছি, কারো দিদা গল্প বলেছে, ঠাকুমা গল্প বলেছে, বা বড়রা গার্জেনরা আমাদেরকে রঘু ডাকাত নিয়ে বলতো কি এরকম একটা ডাকাত ছিল যে জমিদারদের লুটে গরিবদেরকে বিলি করতো। সে রবিন হুড ছিল সেই সময়, ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করেছে। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए मंगलवार को सालानपुर थाना द्वारा रूपनारायणपुर के नंदरिक हॉल में प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्र के दुर्गा पूजा कमेटियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के एसीपी कुल्टी एसके जावेद हुसैन, ट्रैफिक एसीपी सौरभ चौधरी, सलानपुर बीडीओ दिबंजन बिस्वास, थाना प्रभारी अमित कुमार हाटी, आरपीएफ प्रभारी अजित कुमार सिंह, जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, पंचायत समिति सभापति कैलाशपति मंडल, एसीएल सुरक्षा प्रभारी दिलीप प्रसाद सहित बिजली और वन विभाग के अधिकारी और पूजा कमेटियों के सदस्य उपस्थित थे। एसीपी हुसैन ने पूजा पंडालों में सरकारी नियमों का पालन, डीजे पर प्रतिबंध और लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने की हिदायत दी। एसीपी चौधरी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जवानों की तैनाती और NH-19 पर रात में भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। थाना प्रभारी ने मंडपों में सीसीटीवी, अग्निशमन उपकरण और पुलिस के साथ समन्वय की अनिवार्यता पर जोर दिया। आरपीएफ ने रेलवे क्रॉसिंग पर अतिरिक्त सतर्कता की बात कही। प्रशासन ने पूजा कमेटियों से नियमों का पालन और सहयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। मंगलवार सुबह से ECL के लौदोहा में कोलेरी के लिए जमींदाताओं ने परियोजना के मुख्य गेट को बंद कर कोलेरी के परिवहन और कन्वेयर बेल्ट को रोककर प्रदर्शन शुरू किया। भूस्वामी पवन बैनर्जी और राणा गोस्वामी सहित 22 लोगों का दावा है कि 2018 में ECL ने उनकी जमीन CB एक्ट के तहत अधिग्रहित की थी। इसके बदले नौकरी का वादा किया गया, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी केवल आश्वासन मिले, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक अध्यक्ष शतद्वीप घटक और श्रमिक नेता INTTUC संबंधित KKSC के क्षेत्र सचिव बिंदु देवजस उनके साथ खड़े हुए। उनका कहना है कि कोलेरी प्रबंधन बार बार आश्वासन देकर भूस्वामियों को ठग रहा है। इसी कारण भूस्वामी मजबूर होकर आंदोलन पर उतरे हैं। नेताओं ने कहा कि वे हमेशा प्रदर्शनकारियों के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। भूस्वामियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी जमीन के बदले नौकरी नहीं दी गई तो वे बड़े आंदोलन की राह चुनेंगे और जरूरत पड़ने पर आमरण अनशन करेंगे। দেখুন 2018 সাল থেকে প্রায় আমাদের 30 হেক্টরের জন্য 22 জন যে জমিদাতা তারা তাদের জমি দিয়েছে ECLকে এবং 2018 পর থেকে আজ 2025 প্রায় 7 থেকে 8 বছর ধরে তারা নিজেদের চাকরির দাবি নিয়ে পড়ে বিভিন্ন টেবিলে তারা ঘোরাঘুরি করেছে। কোনো টেবিল থেকে একটাও সদুত্তরও পায়নি। এর আগেও প্রায় 2খানা GM ট্রান্সফার হয়ে চলে গেলেন, কেউ নিজে প্রমোশন হয়ে চলে গেলেন, কেউ নিজের রিটায়ারমেন্ট হয়ে চলে গেলেন। তারপরেও এনাদের যা নতুন GM LRE ডিপার্টমেন্ট বলুন বা ল্যান্ড সেল বলুন, নতুন নিয়ম এনে পড়ে এদেরকে বারবার আমাদের জমিদাতাদেরকে বারবার হেনস্থার জায়গায় তুলে ধরেছে। এই কোলবেল্ট এরিয়ার মানুষরা সবাই বিক্ষুব্ধ। এইভাবে ECL বলুন বা কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে যে বেকারত্বের হারকে না কমানোর জায়গায় বেকারত্বের হারকে বেশি বাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছে এবং তারা বারবার বিভিন্ন এদের জমি থেকে কয়লা তুলে এক্সট্রাকশন করে পড়ে তারা নিজেদের প্রোডাকশনকে অ্যাচিভ করে নিচ্ছে, বরং তাদেরকে চাকরি দেওয়ার জায়গা থেকে ব্যর্থতা প্রমাণিত করেছে। তাই আমাদের বিধায়ক সাহেবও
বারবার এই টেবিল চাপ দিয়েছেন এবং সিএমডি সাহেবের কাছে উনি কথাও তুলেছেন। তারপরেও সিএমডি সাহেব বলুন বা আরও যারা আধিকারিক আছে ইসিএল দপ্তরের, তাদের কোনো আওয়াজ সেইভাবে আমরা পাইনি, বা তাদের জন্য এই যে আমাদের জমিদাতাদের জন্য সেইভাবে দরজাটাও খুলে দিয়ে ব্যবস্থা করে দেয়নি, যাতে এরা শীঘ্রই তারা চাকরিতে তারা নিজেরা নিযুক্ত হতে পারে, তারও সেই ব্যবস্থাপনাটা কোথাও দেখা যায়। তার প্রতিটা মুহূর্তে সেই অভাবটা আমরা বোধ করেছি এবং আমাদের যারা ল্যান্ড লুজাররা তারা সেই অভাবটা সবসময় বোধ করেছে। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।